नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ न्यूट्रिशन इंडस्ट्री की स्पेशलिस्ट सुमिति कलानी है। सुमिति, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सुमिति पिछले 5 साल से न्यूट्रिशन में सर्व कर रही है सोसाइटी को। इनके 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। इन्होंने मास्टर्स करा था एमिट यूनिवर्सिटी में, और ऑस्ट्रेलिया से भी आपने न्यूट्रिशन में और डाइटिशियन में कोर्सेज करे हुए हैं। तो सुमिति, थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल में बताइए। Definitely. So, hi everyone. I'm Sumati, and I hold a degree in Masters in Nutrition and Dietetics. And I have worked as a professional dietitian with Max Hospital, that is the Gurgaon branch. I've worked with Healthify Me and HealthCart as well. So yeah, that's about me. Rest सब पता पड़ गया है about my studies. I am handling 500 plus clients ongoing. I do have a recognized work with the International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education. My research articles have been published in European journals as well. So yeah, I think that is about me, and we Oh, are good to go. that is very great. Yeah. What inspired you to pursue masters in nutrition? This is a very funny story. मैं बताना चाहती हूँ. So I was in a boarding school, Right. right? तो boarding school से I was there till up to class 10, and वहाँ पे आपका food choices नहीं है, right? जो है it's a fixed menu for everybody to be there. So everybody has that. Once I moved out and even my higher studies 11, 12, so I had to make my own choices. जो मुझे affect करने लग गया. You know, I grew a little bit fat and there were problems with my health, falling ill and all of that. Then I remembered that, you know, there's something called as science and there's something called as nutrition. So during that time, I was in the science background. So that made me decide कि मुझे pursue nutrition ही करना है. Right. Because that was helping me go through my health issues. Right. तो yeah, I think वो मेरा inspiration था, and that's how I moved ahead. चलो, that was very good. कि you got inspired by your diet only. कि you wanted to make yourself fit. Exactly. So how do you define junk food in simple terms? Okay. So junk food is basically normal food that you say, but it is lower in the nutritional value. अब nutritional value से अगर हम बात करें, low on vitamins, low on minerals, lower in fiber, and pretty lower in protein. So that is what is called as junk food. उसमें good amount of nutritional value जो requirement होती है एक इंसान की daily basis पे, जो आपको चाहिए इतना ग्राम प्रोटीन, इतना ग्राम फैट, वो नहीं होता है. बल्कि उसमें unhealthy fats होते हैं which are not required by the body. There's more of sugar, there's more of caffeine, I would say, in the zero added sugars जो कहते हैं drinks. Yeah, so I would say junk food is lower on the nutritional front. That is called as junk food. Right, right. So you see, what are the most common health issues you see linked to excessive junk consumption? See, excessive consumption of junk किसको बोलते हैं? जब आप डेली खाओ, राइट, रेगुलर बेसिस पे, जो अडिक्टेड हो, चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, एंड इंडिया में इट इज वेरी कॉमन, राइट, वो खाने को कहते हैं. तो अगर आप उसको खा रहे हैं डेली बेसिस पे, सोडियम आपका हाई हो रहा है विच इज सॉल्ट, राइट. उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में सोडियम का इंटेक हाई होता है. इन लॉन्गर रन इफ यू सी, दूर के पर्सपेक्टिव से, तो आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है. यू कैन हैव फ्यूचर हार्ट रेट रिलेटेड इश्यूज, राइट. प्लस दे आर ऑल विद अनहेल्दी फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स. तो उसमें आपका डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकता है. अगेन लाइक आई सेड, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती उनमें. तो आपने खा लिया, उस टाइम के लिए पेट भर गया है, बट एनर्जी लेवल्स आपके लो होंगे. जब वो बर्न हो जाएगा तो एनर्जी लेवल्स लो हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं थी उसमें, आपने प्रॉपर बैलेंस्ड मील नहीं खाया, राइट. लेकिन इसमें जो पैकेट्स के ऊपर जो लिखा हुआ होता है पीछे, इतने कैलोरीज, इतने फैट्स, वो सब टेबल बनी हुई होती है. एग्जैक्टली. तो कुछ ना कुछ कैलोरीज तो होती ही होंगी. हाँ, होती है, जरूर होती है. दे से लो कैलोरीज, दे से हेल्दी फूड, दे से जीरो शुगर. बट जीरो शुगर के साथ अगेन आप पीछे लेबल पढ़ो, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो, प्रेजर्वेटिव्स, एडेड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं कॉज करेंगे, बट इन द फ्यूचर जब यंग जनरेशन बड़ी होगी, आगे एज में जाएगी, वो कोई ना कोई डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज आएंगे, राइट. देयर इज लॉट ऑफ कैफीन इन इट. जीरो शुगर तो कर दिया, लेकिन किसी का आप कैफीन बढ़ा रहे हो,
अननोइंगली, दैट पर्सन डजंट नो हाउ टू रीड। अगर मैं आपको अभी दे दूंगी तो आप ये नहीं देख पाओगे कि लेबल में कितना ग्राम मुझे प्रोटीन मिल रहा है या कैलोरीज मिल रही हैं। आपको सिर्फ वो अच्छा लगा, जीरो शुगर, तो यू हैड दैट। वो जीरो शुगर वाकई में होती है? या होती है, जीरो शुगर होती है, बट उसकी जगह वो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल देते हैं ना आई थिंक मील। दे आर मोर डेंजरस फॉर हेल्थ। यस डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसके साथ साथ जो कैफीन, टॉरिन, आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब एडेड होते हैं। एंड आल्सो चेक योर सोडियम इन दैट ऑलवेज। सोडियम भी होता है उसमें? डेफिनेटली, आप कोई भी ड्रिंक उठा लीजिए या कोई भी पैकेट फूड विच सेज जीरो कैलोरीज, लो कैलोरीज, दे हैव ऑल दैट। Right. So, how does poor nutrition affects children's growth, immunity, and academic performance? Okay. So again, if you are doing that on a daily basis, if you're having that food on a daily basis, you are going lower on energy levels, right? Once you are in the low energy levels, आपका sleep deprive हो जाएगा, right? आप सही से नहीं सोएंगे तो आप सुबह next morning you will not wake up on time, which our generation has been doing. नहीं उठा जाता है, उठते हैं तो थकान महसूस हो रही है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंच रहा है, राइट? जब वो होने लगेगा यू विल स्टार्ट टू हैव लेसर कंसंट्रेशन। अगर आप हमें बैठा दीजिए 1 घंटा कंसंट्रेशन करने के लिए हमारी जनरेशन को, विद इन दैट 1 आवर हम 15 मिनट में तो फोन चेक करेंगे, राइट? सो दैट विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड हेंस देयर विल बी नो गुड academic performance once you can't concentrate. When your concentration is poor, you can't do Exactly, anything. you can't grasp the information. Exactly. बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत से प्रोडक्ट्स जो मार्केट होते हैं वो हेल्दी स्नैक्स कर कर होते हैं, तो क्या वो वाकई में हेल्दी हैं? Again, for you to understand what is healthy, I would always recommend कि please आप पैकेट पलटो, there's something called as ingredient list over there. Read that ingredient list. Now we are very well educated, we have all the phones in the world to check the Google information, that क्या ये ingredient मेरे लिए ठीक है या नहीं है. Read that and read the nutrition label, right? जो भी न्यूट्रिशनल लेबल पे लिखा होगा कि इतना प्रोटीन है, तो आपको उसको 100 ग्राम्स में से देखना है कि मेरी एज के हिसाब से वो 100 ग्राम्स में से मुझे मिल रहा है उतना या नहीं मिल रहा है. सो इफ इट इज एक्चुअली हेल्दी, आपका प्रोटीन लेवल पूरा कर रहा होगा टू सम एक्सटेंट, नॉट पूरे दिन का, लेकिन हाँ उस पर्टिकुलर मील के लिए आपको मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, कैलोरीज अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स पैकेट मिल रही हैं, शुगर लेवल्स लो हैं, there are no added preservatives, right? And sodium का level maintained होना चाहिए, there should be normal sodium levels. So that's how you can बेसिकली see. अगर आप इसको सम अप करो तो क्या 5 मेन चीजें देखनी चाहिए हमको इंग्रेडिएंट्स में? You should check your protein levels, you should check your fiber levels, you should check the calories, you should check your sugar levels, and you should check what are there, like added preservatives क्या है, कितने लेवल का सोडियम है एंड कितने लेवल का कैफीन है. This should कितने not. लेवल तक का सोडियम और कैफीन परमिसिबल So है? sodium and caffeine totally depends on how much your consumption per day is according to your age factor. अच्छा। Yeah. So that cannot be described as a आई one-to-one. थिंक वो तो डाइटिशियन से ही बेटर पता चल Yeah, पाएगा। once we get your, BMI, BMR, Right, according to every person, according to that. अब ये जो डाइट फूड्स आते हैं और एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, क्या ये बेटर अल्टरनेटिव है? No, definitely not. अच्छा। So again, I'll say कि अगर आप healthy foods देखें जो ये लिखते हैं या zero sugar, low calories वाले, उसमें I am against one thing which is caffeine, right? So once you start consuming caffeine, क्या होता है, आपकी sleep disturb होती है. Again, once the sleep is disturbed, you get more anxious, right? Your concentration levels drop, your energy goes down. Now talking about sodium in them, they're very high levels of sodium. सोडियम क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है बॉडी को, पानी खींच लेता है, उसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन. तो अगर आपका डिहाइड्रेशन है, वाटर रिटेंशन है, आपका डाइजेस्टिव इश्यूज विल स्टार्ट टू हैपन. और आप डेली बेसिस पे अगर ये लेंगे तो अगर सोडियम हाई है तो हम सबको पता है कैन कॉज हार्ट डिजीजेस, राइट? तो फ्यूचर में हार्ट रेट और हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जरूर आएंगे. लेकिन मैंने ये देखा है कि ओल्ड एज में सोडियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो एक तरफ तो हम सोडियम लेवल को कम करने की बात कर रहे हैं, हाँ. और एक सर्टेन एज के बाद सोडियम बड़ा डॉक्टर्स कहते हैं लेना चाहिए. ओके. तो जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं जो हमें पैकेज्ड फूड और पैकेज ड्रिंक से सोडियम एक्स्ट्रा मिल रहा है,
आप जो खाना खाते हैं उसमें सॉल्ट डलता है, बिना नमक के खाना नहीं नहीं बनता बनता है। राइट? जो हम पैकेट से ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी में। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा सोडियम जो नहीं लेना चाहिए। और अगर आप उसी एक्स्ट्रा सोडियम को डेली बेसिस पे कैरी करेंगे बाहर से जो मिल रहा है, दैट विल कॉज एन इशू टू यू। अगेन हमारा जो जनरेशन है, अल्फा मिलेनियल्स, ऑल ऑफ अस, वी ईट सच फूड राइट? So once we start eating such food, we tend to develop such issues. आगे चल के हमें कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होंगे। आप जो कह रहे हैं कि ओल्डर जनरेशन को आपने जो अभी तक देखा है कि आता है, बट दैट पर्सन माइट हैव गॉन थ्रू सच थिंग्स इन लाइफ, मे बी सम एक्सीडेंटल इश्यूज, मे बी सम मेडिकल कंडीशंस दैट माइट हैव ड्रॉप्ड देयर बीपी लेवल्स राइट, लो सोडियम लेवल्स। दैट्स व्हेन दे टेल देम कि आपको सोडियम अपना थोड़ा बढ़ा के रखना है। अच्छा, ओल्ड एज में आई हैव आल्सो सीन पीपल कैन नॉट कंज्यूम तेज तेल मसाले वाला खाना राइट, बिकॉज योर थ्रोट डज नॉट एक्सेप्ट इट, योर टंग रिसेप्टर्स आर गॉन। सो टू लूज इन दैट, घर वाले क्या करते हैं, नमक भी कम कर दो, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। यू आर एनीवेज ग्रोइंग। मतलब हमको ओल्ड एज में क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप जो है नमक का इंटेक कम करें, उसकी वजह से भी रिवर्स रिएक्शन कैन हैपन। तो वो काफी जो है ओल्ड एज में हमको डाइटिशियंस और डॉक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली दैट्स द क्योंकि हमारे इंडिया में मैंने देखा है कि दो लोग उनको बिल्कुल वैसे मानते हैं कि जरूरत नहीं है कॉमन मासेस में, तो साइकेट्रिस्ट जिसकी हर एक आदमी को जरूरत है, और एक डाइटिशियन उसकी भी हर एक को जरूरत है। इन इंडिया फॉरेन कंट्रीज में तो सभी लोगों का एक पर्सनल डाइटिशियन भी होता है और साइकेट्रिस्ट भी होता है। एंड दे आर वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे आर पुटिंग इनटू देयर बॉडी। राइट। अच्छा, ये जंक फूड के अल्टरनेटिव्स में व्हाट यू सजेस्ट कि हमको खाना चाहिए? तो बेसिकली जंक फूड हम मोस्टली तब खाते हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं राइट, या इजिली ग्रास्प मिल रहे हैं, एंड नो डाउट बहुत टेस्टी होते हैं, आई अग्री टू दैट, एंड कन्वीनियंट भी होते हैं कि कप नूडल्स खोले फटाफट बना लिए, बट वी डोंट हैव टू डू दैट। कप नूडल्स का ऑल्टरनेटिव है यार, घर पे हमारे जो जवे होते हैं, नमकीन सेवैयाँ होती हैं, पोहे होते हैं, वी कैन मेक सच थिंग्स, वी कैन मेक हाई प्रोटीन रैप्स एट होम। व्हाट इज हाई प्रोटीन रैप? कोई भी आप दाल को पीस लो, चीला बन जाएगा, फिल इन विद सम प्रोटीन। यू लाइक नॉन वेज, यू कैन पुट नॉन वेज, आई लाइक पनीर, आई पुट इन पनीर, becomes a high protein wrap, right? Apart from that, you don't want to, watching a movie, you don't want to have chips, you're on a diet, go for makhanas, go for popcorns, they're lower on calories, don't over consume them. Again, there should be limited quantity to that. There are always nuts, seeds, आजकल इतने टेस्टी लगते हैं, आप सॉटे करके खा लो उनको। ड्रिंक्स की अगर बात करें तो देयर इज कोकोनट वाटर, देयर इज बटर मिल्क, छाछ जिसको हम बोलते हैं, हमारे घरों में यूज होती है। भाई हमारे यहाँ बहुत ड्रिंक्स का रिवाज है सोसाइटी में, इसमें तो ड्रिंक्स के बारे में क्या व्यू है आपका? ड्रिंक्स अगेन देन आई एम टॉकिंग ऑफ हार्ड ड्रिंक्स। Yeah, I understood the hard drinks, but again, hard drinks are again higher on calories. You mix them with soda, you are increasing your carbs level, carbohydrate level, right? Affecting your organs. By organs, I especially mean all the organs, not सिर्फ liver पे effect नहीं पड़ता है. अच्छा. Once you put in alcohol inside your body, goes through a lot of organ digestion. So going damaging all the organs, it is going to be harmful. So yeah, again हमारी choices हैं, it is our healthy lifestyle, कब हमें कितना consume करना है। अगर what do you suggest के जैसे social drinking बहुत होती है, तो किस तरीके से ड्रिंक ली जाए जिससे कम से कम हार्म हो? पहले तो नहीं ली जाए ये ड्रिंक, आई वुड से इट इज नॉट गुड राइट। अगेन इफ सोशली बहुत ये है कि हाँ लेनी ही है, यू टेक वन ड्रिंक, आई वुड से कीप द क्वांटिटी मिनिमल and do not add extra sodas or again the cold drinks that we use, or the juices, packed juices, hence go ahead with just water or something like that. अब juices का सवाल आया तो are juices healthy? No, again you have to read the packaged label. I will not call them healthy, they are not healthy in clear terms. If you see their levels, I will bring, I forgot to bring one bottle, I would have kept one bottle here and I would have made you read the ingredient label. किस लेवल का शुगर है उसमें, और उसमें प्रोटीन तो है नहीं, उसमें फाइबर तो है नहीं, जो हमें चाहिए वो तो है नहीं, जो नहीं चाहिए जो हम डेली उसमें खा लेते हैं मिल जाता है वो सब है। मैंने बहुत सी ड्रिंक्स में ये जो फ्रूट ड्रिंक्स होते हैं जूसेस वाले, उसमें देखा था कि फ्रूट है ही नहीं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड है, और पीपल, और वो हेल्दी ड्रिंक करके जो है गिमिक, इट्स अ मार्केट गिमिक, टोटली मार्केट गिमिक। एक हेल्दी स्नैक क्या सजेस्ट करोगी
जो घर पे हमेशा रहना चाहिए? हमेशा रहना चाहिए. My favorite, it is roasted ghee वाले मखाने. It ओके, is very high on iron, so it's good for all the females. So please do consume, you know, मखाने, roasted मखाने घर पे रखो, खाओ अच्छे से. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई, जो सबसे बड़ा न्यूट्रिशन मिथ है, वो क्या है? So recently I have been dealing with 2-3 of younger generation of clients. उनका क्या कहना है, हम तो उठते लेट हैं, तो हम ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है. अच्छा। तो दे थिंक लीविंग आउट वन मील कैन हमारी पूरे दिन की कैलोरीज कम कर देगा. बट वही तुम रात तक बैठ रहे हो और तुम अपने पॉपकॉर्न्स और चिप्स और ये सब जो भी खाना है इन एक्सेस अमाउंट खा रहे हो, तो तुमने ब्रेकफास्ट क्यों छोड़ा? राइट. सो लीविंग आउट अ मील, इट इज अ बिगेस्ट न्यूट्रिशनल मिथ कि एनी मील कि आपने ये छोड़ दिया और कैलोरीज कम हो जाएंगी. नो, नहीं हो रही हैं. आप अगर हो भी रही हैं, चलो कुछ लोग हैं जो रात को नहीं कंज्यूम करते हैं, आई एग्री, वो राइट। सो जाते हैं, बट उनका मेटाबॉलिज्म लो हो रहा है. अगेन, मेटाबॉलिज्म क्या है? आपका जिस रेट से कैलोरीज बर्न होता है, जितना आप खाते हो उतना बर्न करना होना चाहिए बॉडी में, राइट? उसको लो कर देगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इन फ्यूचर आप फैट लॉस में बहुत दिक्कत आएगी, वेट लॉस में, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है ऑलरेडी. हाँ, वो हमने तो एक कहावत सुनी थी अपने टाइम में कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग किंग, लाइक अ किंग, या दैट्स एंड राइट. लंच लाइक अ नॉर्मल नेम, like a common man कॉमन मैन, and dinner like like a a beggar. poor. Yeah, that's right, that's right. अच्छा, अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ एडवाइस करना चाहते हो तो क्या करोगे? Advice, that's a good question. So my advice is, see, dieting should not be strict, right? There should be a balance. Always balance your meals. Always look out for the packet that you are consuming. उसके ingredients पढ़िए. I'm not saying कि आपको life भर उसको avoid करना है. Just be cautious about what you're putting inside your body, right? The best thing for you to do is take care of your health now, because small changes that you will make right now will have a better future. You will not have health issues in the future. So I think that is going to be my advice for everybody. थैंक यू वेरी मच सुमिति Thank you so much. फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। लगता है आप लोगों को आपने कुछ नॉलेज गेन करी होगी हमारे इस पॉडकास्ट से, और आपको सुमिति से कांटेक्ट करना होगा तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और उसका टेलीफोन नंबर दे देंगे. यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट टू अस, एंड इफ यू लाइक द पॉडकास्ट, kindly subscribe, comment and share. Thank you. Thank you.